Hello students, online application form filling for NEET 2025 has just started and it is on the official website neet.nta.nic.in. It has just started and it's going to be till 7th of March. Okay, so you have good amount of time in hand to fill your application form for NEET 2025. Exam is going to be on 4th of May. And you are going to get your admit cards, means you can download your admit cards from the same site by 1st of May. Okay. The exam is from 2 to 5 on 4th of May, and it's for 3 hours with 180 questions without any options, like there is no section B this time, so it has gone back to the pre-COVID format. तो अभी application form उसके लिए कैसे भरना है, that we are going to see. But before that, few important points that you must note are, see, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तभी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेक्शन उसमें नहीं कुछ कर सकते हो. ठीक है? So you need to be very careful in filling application form. You can edit, modify information before you submit the application. So while filling each section, before pressing the submit button, आप देख लीजिए कि आपने जो information fill की है वो proper है. ठीक है? Instructions like when you have to upload your documents, may it be photograph, your signature, other documents, that is your mark sheet or say your category certificate हो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, तो उसका फाइल टाइप क्या होना चाहिए, फाइल साइज क्या होना चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शंस पहले ही आप ठीक से पढ़ना जरूरी है. Another important thing is about your mobile number and email ID. See, when you use your own mobile number and mail ID, so that gets registered, वही नंबर पे, वही मेल आईडी पे एनटीए की तरफ से फ्यूचर करस्पॉन्डेंस होने वाला है. तो इसीलिए make sure that the number that you mention, the mail ID that you mention should remain functional. ठीक है? While filling the question paper medium, you need to be very careful, क्योंकि पेपर आपको वही, जैसे आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में आएगा, है ना? तो वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई करेक्शन आप बाद में नहीं कर सकते हो. ठीक है? तो when you visit the official website, ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव. वहां क्लिक करने के बाद यू कम अक्रॉस दिस पेज. सो यू आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. यहाँ क्लिक करने के बाद यू कम अक्रॉस द पेज वेयर the 3 steps you will find, that is registration, then application form, and final part is payment of fees. ठीक है? You can always download the information brochure which is available. वो आप कभी भी download कर सकते हो. और यहाँ पे set of instructions जो है वो पढ़ लीजिए properly. That is with respect to the documents that you are going to or you are required to upload. फिर आपको आपका पासवर्ड जो है वो कैसे सेट करना है, वो कितने डिजिट का होना चाहिए, उसमें जैसे कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना? तो ये सब जो स्टेप्स है या इंस्ट्रक्शंस है, ये ठीक से पढ़ के देन यू हैव टू टिक on the checkbox that yes, I have read all these instructions and now I would proceed to fill or go ahead with my registration. ठीक है? फिर आप registration process चालू करते हो. Now here to begin with, you need to enter your name the way it is on your 10th standard mark sheet. So you mention your name, then your father's name, mother's name, enter your date of birth, ठीक है, and your gender. ये इंफॉर्मेशन इट विल आस्क यू टू अगेन रीराइट. ओके, तो कंफर्म करना है, तो वापस यही आपको बाद में लिखना है. ठीक है? और ये होने के बाद देन एंटर योर एड्रेस, योर मेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर. ये होता है. उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है.
Make sure that the password that you set, it should not be shared with your friends. Of course, ये पासवर्ड आपको आपके पेरेंट्स को बताना ही है, क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए आपने क्या पासवर्ड रखा है, ठीक है ना? तो set your password, note it down and keep it in safe. That should be known to your parents, ठीक है? Also, you have to select one security question. यानी समझो, अगर आपको याद नहीं आता है फ्यूचर में आपका पासवर्ड, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जिसके लिए आप आंसर चूज करते हो, उस हिसाब से यू आर अलाउड टू इवन रीसेट योर पासवर्ड इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो उसके बाद कैप्चा एंटर कीजिए एंड देन इट विल आस्क यू कि आपने ये जो सब इंफॉर्मेशन फिल की है, सो is it all you have read properly? So put tick on these check boxes after going through the entire page that yes, I have written my name properly, gender, my parents' names, then my mobile number, my mail ID. So everything I have checked properly, and now I have to go ahead so that I will receive OTP to complete my registration. तो यहाँ आप क्लिक करते हो तो आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल आपने दिया है वहां पे एक OTP आएगा, that you need to enter, so your registration gets over and one unique application number is generated for you. तो जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, against your name you will receive your application number. आपको SMS भी आ जाएगा ये एप्लीकेशन नंबर का, ठीक है? तो यानी फॉर फ्यूचर login, you can always log in with your application number and the password that you have set in. समझे? With this, your registration process is done. Now, what is pending? Of course, application form filling, and then final is the fee payment. So, go ahead now with your application form. तो यहाँ पे जो काफी सारे स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल है. जैसे कि आपको आपका पर्सनल डिटेल्स देना है, आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स देने हैं, एग्जाम सेंटर क्वालिफिकेशन डिटेल्स. तो एक एक स्टेप हम देखते हैं कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है. तो चलो, फर्स्ट स्टेप आ जाता है पर्सनल डिटेल्स का, जो ऑटो फेच हो जाएगा. फिर यहाँ आपको खाली आपकी नेशनैलिटी मेंशन करनी है, जैसे इंडियन. देन एंटर द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जैसे आप सब महाराष्ट्र से एग्जाम देने वाले हो, सो यू विल एंटर आवर स्टेट नेम. विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, ओके, कास्ट कैटेगरी. Those who are from open category will enter as general. अगर आप समझो SC ST है तो वो हिसाब से आपको कैटेगरी चूज करनी है. Those who fall in the category of EWS need to mention the same. Okay. Then it will ask you for other details like, do you have diabetes? No. Then what is your place of residence? Whether you are from an urban area or a rural area, तो आप लिखोगे कि urban. Then family income, तो वो slab आप select करोगे. Do you belong to any minority? So basis your candidature, you will select yes or no. जैसे no, I have written. Then ये सब होने के बाद it will ask you certain questions like what is the mode of preparation. तो this is for the survey purpose. जैसे आपने ट्यूशन ली है या कोई समझो बच्चा है जिसने सेल्फ स्टडी की है, so you select that. And there is another question that have you appeared for NEET before? तो आप सब लोग तो पहली बार नीट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आंसर टू डू यू इंटेंड, सॉरी, आप नीट के लिए जो ड्रेस कोड है, जो नॉर्मल ड्रेस कोड है, वही आप सिलेक्ट करने वाले हो, यानी आप पहनने वाले हो, या कोई ऐसे अनकन्वेंशनल. तो डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड? तो ऑब्वियसली नो, आप तो नॉर्मल ड्रेस कोड पहनने वाले हो. तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद यू विल सेव एंड प्रोसीड, ठीक है? अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वेर इन यू नीड टू चूज योर टाइप ऑफ आइडेंटिटी. तो यहाँ काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आधार, ऑफ कोर्स दैट वी ऑलवेज रेकमेंड टू चूज. नहीं तो डिजी लॉकर है कोई स्टूडेंट का, तो वो भी चूज कर सकते हो. पैन कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है. बट द सेफ एंड द बेस्ट वे इज व्हाट वी रेकमेंड इज गोइंग विथ द आधार कार्ड, ठीक है? तो आप आधार कार्ड चूज करो
और ये चूज करने के बाद देन यू नीड टू एंटर योर आधार कार्ड नंबर. सो यू विल एंटर दैट आधार नंबर एंड सेव एंड प्रोसीड. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी टाइप आप सिलेक्ट करते हो. उसके बाद फिर इट विल आस्क यू टू एंटर योर अपार आईडी. तो आपके कॉलेज में आपने ऑलरेडी अपार आईडी आपको मिला है, नहीं है तो आप कॉलेज को कांटेक्ट करो, और आपको अपार आईडी मिलता है तो वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है. ठीक है, ये अपार आईडी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल information about your exam center details. The very important thing is question paper medium. तो आपको चूज करना है इंग्लिश. सो इट इज irrespective ऑफ योर मदर टंग. ओके, आप इंग्लिश में पेपर क्वेश्चन पेपर आप लेने वाले हो और आंसर करने वाले हो. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन. सो दैट्स गोइंग टू बी महाराष्ट्र. Now select the city. जैसे students who stay in Mumbai will select Mumbai first, then Navi Mumbai, then Thane. Or basis where you stay, it would be say Thane, Navi Mumbai, Mumbai, likewise within Maharashtra. Now you have to answer the questions about your parents' education and their occupation. तो ये answers आप दे दीजिए. इसके बाद save और proceed करके आप जाते हो आपके qualification details के लिए. Now here you need to enter 10th standard के आपके details. जैसे कि you have already passed standard 10th in 2023, है ना? It was a 10th examination and place of school was in urban, है ना? अपने शहर से दिया है. फिर what was your school type? Was it government school या private school? तो वो आप choose करो. महाराष्ट्र से आपने एग्जाम दी है. विच सिटी द स्कूल वॉज इन, से मुंबई और थाने, तो आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करो. द टाइप ऑफ बोर्ड, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वो आप लिखो. as per your mark sheet, then you have to select what was your 10th standard result mode. Was it in the pointer or it was in the percentage mode? तो जैसे state board के लिए तो अपना होता है percentage, so select that. Enter total marks as per your mark sheet, the marks that you scored in standard 10th. So the percentage gets calculated automatically. Enter your roll number of standard 10, your school name, address, and this is all about your standard 10th details. ठीक है, और अभी 12th का, 12th तो आप अभी अपीयर कर रहे हो, बराबर है. भले आप बोर्ड एग्जाम के बाद भी ये फॉर्म फिल करते हो तो भी आप अपीयर ही लिखोगे, बराबर है, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं आने वाला है तब तक. तो यू आर गोइंग टू राइट स्टैंडर्ड 12 अपीयरिंग इन 2025. सो ऑब्वियसली ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड है ना, वो अपने आप 01 ही आ जाता है. which area the school is, I mean the college you have done your 12th is urban. तो कॉलेज टाइप क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट अनएडेड है, वो चूज करो. महाराष्ट्र से है, कहाँ पे कॉलेज है, मुंबई में है, थाने में है, नवी मुंबई में है, उस हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करना है. टाइप ऑफ बोर्ड, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है ना. सिंस यू आर अपियरिंग तो ऑब्वियसली बाकी रिजल्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आएंगे ही नहीं. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वालिफाइंग डिटेल्स. अभी एडिशनल डिटेल्स मीन्स you have to just answer as per your candidature these questions के are you a twin? No. if you are yes, then अगर twin है आप तो वो yes लिखना है. फिर आपने यूजी नीट पहली बार कभी दी है क्या? सो हैव यू एवर अपीयर्ड फॉर यूजी नीट एग्जामिनेशन पहले? तो नो, अभी आप पहली बार देने वाले हो, है ना. फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन आवर कंट्री, इन द स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट यू आर इन, वो आप आंसर कीजिए. ठीक है, तो ये होने के बाद आपको पूछा जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आपके पेरेंट्स के डिटेल्स. तो you have to mention, may it be your father's or mother's mobile number and mail ID, because these are the alternative mobile and mail ID. आपने आपका तो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया ही है. अभी देखो, ये जो आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका पेरेंट का दे रहे हो, तो मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स आर विथ यू व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म. क्योंकि जैसे ही आप ये मोबाइल नंबर और
ईमेल आईडी देते हो ना, तो वो ओटीपी से वेरीफाई होता है, समझे? तो तुरंत आपको वो नंबर पे और वो मेल आईडी पे ओटीपी आता है दैट यू नीड टू फिल इन एंड वेरीफाई द सेम। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपका फोटोग्राफ, सो पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, योर सिग्नेचर, देन योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फिंगर इंप्रेशंस, ओके, इंक्लूडिंग थंब, ये सब आपको अपलोड करना है। 10 स्टैंडर्ड मार्कशीट अपलोड करनी है एंड बेसिस योर कैंडिडेचर इवन द अदर डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अपलोड, योर आइडेंटिटी टाइप वगैरह वगैरह। तो हर एक डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि वो फाइल टाइप क्या होना चाहिए, फाइल साइज क्या होना चाहिए, वो लिखा है। नॉट ओनली दैट, हाउ योर फाइल नेम शुड बी। देखो यहाँ वो फाइल नेम भी लिखा है, यानी आपका जो फाइल बनेगा उसको आपको वो फाइल नेम देना है जो यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है KU_फोटो फॉर फोटोग्राफ, KU_फिंगरप्रिंट फॉर दैट फिंगरप्रिंट का फाइल। समझ में आया? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो। ये होने के बाद ही एंटायर फॉर्म यू आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू। ओके, जैसे आपको यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यू चूज अ फाइल, एक्शन में आता है अपलोड, आप अपलोड करते हो और फिर व्यू में आपको दिखाई देता है कि यू हैव अपलोडेड दोज डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन में आप पूरा जो फॉर्म आपने भरा है एक बार ठीक से रिव्यू करो एंड देन finally go ahead with the fee payment. So basis your candidature, you have to pay examination fees and that need to be paid in the online mode. तो वो आप online payment कर दो। Online payment होने के बाद make sure that amount is debited from your account and you get a confirmation page. ये confirmation page आपको जब आता है, इसका मतलब आपका पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट कंफर्मेशन पेज, ठीक है? सो द एंटायर प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ओनली थिंग इज कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी द वे दे हैव आस्क्ड यू in a particular format, then this process will not take much of your time. During this particular process, still, if you come across any query, definitely get in touch with us. We are there to help you. ठीक है? तो ये अभी सब फॉर्म वगैरह होने के बाद now you should be ready for your NEET 2025 exam. So we do have a crash course which is going to start after boards. Of course, for our own Vidyalankar classroom students, this crash course is going to be free and even the test series. But students who are not from Vidyalankar, yes, you do have to enroll for our crash course and test series. ठीक है? तो ये जो crash course है, that is going to commence from 18th of March, so that's after your board exams, wherein we cover entire syllabus that gets revised. So that's going to be a last minute revision for you. We have a very good study plan on a daily basis. The entire sessions, all the sessions will be taken by expert faculties. There will be tests on daily basis and the result also will be made available in the online mode. ठीक है? We will have full syllabus, full length test also for you. Students who are not from Mumbai, okay, who cannot come and take our test series during our crash course, then we do have online test series for them, which is available on our ePay. ठीक है? So after taking this online test, you will immediately get to know your score soon after submission, and even a detailed performance analysis is available for each test. So for details, you can connect to us on 022-4232-4232. Our website is www.vidyalankar.org. So students, all the very best for your NEET 2025 exams. Bye.